I see a lot of only 17 people have joined till now. I think Sunday. And Preeti ji, are you going for your son's badminton tournament? Yeah, I'm very much here. Yeah. They are almost done with the matches. So their team came second. Good, very good. Yes. Congratulations. Thank you. Congratulations. Thank you. Congratulations, Preeti ji. Thank you, Bhabhi. Right, that's nice. You know, good news coming all over, huh? Yes. और किसी का अच्छा कल का practice? Did you find the cues? हाँ, किसी को क्यू कुछ समझ में, छोटा मोटा क्यू भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कोई बिग क्यूज ही मिले. You know, something very simple also. ये दिखाई नहीं दिया. No cues. Payal ji, I have a sharing regarding that. हाँ जी, यस शालिनी. मैं कल घर से बाहर निकली, हम कहीं जा रहे थे, तो we stay in a place जहाँ पे घर से निकलते ही बहुत मेडिकल शॉप्स हैं. तो आते ही वो मेडिसिन शॉप्स दिखे, तो पहले उसको ग्रेटिट्यूड दिया, फिर एक मंदिर दिखा तो उसको दिया, फिर वो पुलिसमैन दिखा तो उसको दिया, फिर एक पार्क दिखा तो उसको दिया. Then it was, I saw a family of people going, तो उस फैमिली को ग्रेटिट्यूड दिया, फिर एक साइकिल को दिया. तो within a space of 5 to 7 minutes मुझे लगा, मतलब अगर these were things which we used to take for granted, कभी notice ही नहीं किया. Right. तो कल that it was there in my mind, so वो देते ही चले गए, मुझे लगा it is so easy. Absolutely. अभी तक alert and aware ही नहीं थे कि ये सब दिख रहा है, right? So we could see all the cues. वो कल बहुत फटाफट 7 तो बहुत जल्दी हो गए. So see, you could have seen more than 7, and some people could not see 1 also, because हम लोग बड़ा cues ढूंढते हैं, कुछ बड़ा दिखेगा, कुछ से कुछ बड़ा cues इशारा मिलेगा, but it can be very small thing, like as Rhonda Byrne shared, अगर ambulance भी दिखे, so I am like it's a cue, for us to be grateful for our health, right? The people in the ambulance must be suffering or must be going somewhere, is not well, and we have a good health, enjoying our lives, so I'm very grateful for my good health. So that's also a cue if you want to take it as a cue. और वही granted ले ली अपना health को वहाँ पे. That's what cues are. Great, Shalini, very good. तो बहुत सारा, मतलब डॉन बॉस्को पास में है तो वो दिखा तो उसको बोल दिया था, एक उसको ग्रेटिट्यूड दिया, एवरीथिंग Education, जो सामने आया तो I was like कि अरे अगर notice करो तो there are so many things, but it's just that we stop noticing only. Yeah, वो तो है, हम लोग भी stop noticing, we just ignorant, I think. अभी तक इतना ध्यान ही नहीं दिया, ये सब पता भी नहीं था. हाँ, वो पता ही नहीं था actually. That's nice. तो यही होते हैं किसी जन को. हाय सविता जी, बहुत समझ में नहीं आते ना, what are the cues? Small things, the small cues maybe. At times you get bigger cues also for life, maybe also. कुछ और भी आपको अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए भी कुछ आइडिया भी मिल जाता है. दिस माइट बी द क्यू, व्हाई इज इट कमिंग टू मी अगेन एंड अगेन. कोई चीज बार बार भी ना आए, लेकिन कभी कभी आए तो भी क्यू है. इट्स ऑन अस इफ यू वांट टू टेक इट एज अ क्यू, और वी कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड. जय जिनेंद्र पायल. जय जिनेंद्र छाया जी. छाया जी, मेरे को तो कोई क्लू ही मिला नहीं. एक्चुअली घर में रहने से, जैसे शी स्टेप्ड आउट मे बी, तो उनको कुछ ज्यादा दिखा घर में. हाँ जी, तो घर में रहने से लगता है हम लोग को नहीं दिखा, लेकिन कभी हम लोग टीवी देख रहे हैं तो उसमें भी कुछ दिख जाता है. अगर हम लोग कुछ ऐसा आप सीरियल देख रहे हो जहाँ पे रिलेशनशिप पे, फैमिली पे कुछ है, so we can get the cue as I'm really grateful for my family, we have a strong bonding, huge respect for each other. तो हम लोग को वो क्यू अगर लेना चाहे तो क्यू जरूर मिलेगा. नहीं तो वो झगड़ा देखते रहो, उसी को एब्जॉर्ब करते रहो, isn't it? But we can take it as a cue कि I'm grateful for my family bonding. टीवी में अगर कुछ एड वैसा दिख रहा है, कुछ स्पोर्ट्स का ऐसा दिख रहा है, तो उससे भी कभी कभी क्यूज मिल जाते हैं, है ना? Those are the cues. I experienced one cue yesterday. No, Yes. today morning. हाँ जी. Rather today morning, I went to park, like lake. मैं lake गई थी for morning walk. So I was sitting there. थोड़ी देर बाद I saw 3 ducklings.
एक संग में चल रहे हैं, तो मुझे लगा ठीक है होगा। फिर देन आफ्टर अ वाइल फिर मैं जब वापस से टर्न होगी तो एट द सेम प्लेस वही ट्री वापस से दिखे, एंड पूरा लाइक इन द पॉन्ड या लेक I haven't seen any other, only the tree, and the three were only moving together दोबारा भी आने के बाद। तो मुझे वही फील हुआ बिकॉज आई हैव 3 चिल्ड्रन, तो ये वो मेरे को लाइक दे वर मूविंग टुगेदर एज डकलिंग्स, दे मूव टुगेदर ओनली। देख वो थोड़ा सा ऐसा फील आया कि लाइक बिकॉज आई हैव 3, so I'm seeing the 3 ducklings again and again, twice and twice. Yeah, maybe the bonding between your siblings, you know, among your siblings, and maybe you and your children can be anything as you see it. खुद के भी अगर 3 ब्रदर सिस्टर हो तो अपने लिए भी आ जाता है। हाँ, and I am 3 brothers sister, like I have 2 brother and I'm the only one. So वो भी अगर उस वैसे सोचो, but I absolutely whatever comes to your mind. हाँ, yeah, I imagine my children only. उस समय कोई नहीं ध्यान में आया। इसीलिए बोले सबका क्यों, सबका अलग अलग है। It's like depends on your perspective and your thoughts. Yeah, that can be the cue as well. Any other cues? और किसी को कुछ अभी समझ में आ रहा है, याद आ रहा है, अरे मुझे भी ये दिखा था, you know, I could have thought it in that way. Actually अभी initially लगेगा थोड़ा effort लेना पड़ रहा है, but बाद में you know when you get used to it ऐसे लगेगा कि अरे cues में क्या है, हर चीज तो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है। Like one of my friends I shared before also, वो जो yogurt मिलता है ना, frozen yogurt. Yeah. सबका different था, but she got the one in which it was written 1 step up. So you know she took it as हम लोग पढ़े तो ऐसे नॉर्मल भी पढ़ सकते हैं, but she took it as a cue, you know, कि मुझे वो बोल रहा है बार-बार 1 step up, you have to upgrade yourself, you have to upgrade yourself, something, you know, she got that cue. She was very happy and she actually connected it to the course she was doing, so she has to take that thing ahead. So every time there is a cue for us, some way or the other, the universe is telling us, not directly, indirectly, they are, universe is throwing the, you know, this isharas or cues which we call it at us, but we have to catch it. हम लोग को उसको पकड़ना है, और वो तो डायरेक्ट तो कोई बोलने आएंगे नहीं ना, हम लोग को ऐसे डायरेक्टली देंगे। The thing is we have to take it and catch it as our cues. और अगर नहीं पकड़ते हैं तो बार बार you know some other way, you know, किसी और के थ्रू, कहीं कभी और वैसे भी थ्रो करते हैं। We have to take that also as a cue. Yes. Any other sharing? Ji, yesterday I didn't attend the class, but परसों I went to my friend's place और हम लोग का कार्ड प्ले करने का था, तो मैं ऐसे ही मैग्निफिसेंट आउटकम करके गई थी कि I hope I'll win the game. And last शुरू में तो I was losing and last के 3-4 games I won and I like it was funny but I did that. Why funny? हाँ, मैग्निफिसेंट आउटकम करके गए थे तो आपका बिलीव स्ट्रांग हो रहा है। Yes, it really works. Yeah, so starting I was not at all winning. I was like I lost everything. Then I changed my place and again I got back again. Everything. अगर वो उस समय बिलीफ आ जाता है ना कि हाँ मैं जीतूंगी, और कितने जन को देखते हैं वो वरी में चले जाते हैं, और फियर में मे बी यू नो that what if I lose all, I know I'm not winning, she's only winning, वो jealousy वाला feeling भी आ जाता है, then you tend to lose. So Payal, magical day and magnificent outcome is almost same, no? Magical day is for your कि मेरा डे बहुत अच्छा जाए हर एक चीज के लिए, हाँ, जो very similar to, वैसे तो magical to do list भी है, you know, magnificent outcome. मैजिकल टू डू लिस्ट तो चलो अपने कुछ रिटर्न करते हैं अकॉर्डिंगली कि भाई ये काम हो जाए, बट मैजिकल डे इज आल्सो द असम्पशन बिफोर ओनली कि भाई आज मेरा डे मैजिकल, एंड मैग्निफिसेंट आउटकम इज आल्सो लाइक कि भाई ये काम सबका एक एक स्टेप अप होते जा रहा है। मैग्निफिसेंट आउटकम इज अगेन अ स्टेप अप, यू नो, थोड़ा अपग्रेडेड फॉर, और वो मैजिकल डे है, इट्स लिमिटेड टू दैट पर्टिकुलर डे ओनली, small thing. उसके बाद फिर gratitude, जैसे जैसे we start collecting, then we upgrade, you know, magnificent outcome. You really want the result the way you want it. Okay, Sarika ji was sharing. Done, Sarika ji. All right. So आज का we are on day 26. So अब हम लोग को you know थोड़ा सा regularly attend कर लेते हैं, because hardly I think 28 practices and then 1 finale. So closing day. So we have another like 26 to 28. Another like okay 4 days.
right? We have just 4 days more. So let's be present. And जितना ले सकते हैं इसका हम लोग जरूर इसका grasp करेंगे और लेंगे. So today is on day 26 and it is magically transform mistakes into our blessings. Right. तो आज कौन पढ़ना चाहेगा? Who would like to read today? दी मैं. Two voices I heard. Who all were they? दी मैं. Dimple ji. All right. Okay. Dimple ji would like to read today. And I welcome you all again to the Rhonda book The Magic. Rhonda Byrne book The Magic. And heartfelt gratitude to Rhonda Byrne. And to my mentor, Ashmin ma'am. Yes. Anyone joining any other session? अभी तक कुछ नहीं, मैजिक या पावर का या कोई और कोई स्ट्रक्चर किसी ने बनाया है? कोई और तो भी सेशन नहीं शुरू होने वाला है ना? कोई मैसेज तो नहीं आया? No, actually, in Tathastu, like in that group, people not from our like 4 friends, but from other that group, people from Delhi, Mumbai, I think they all have started, but already started. Hindi also, English also. Oh, actually, my my elder daughter, she wants to start, but usko late evening का ही suit करता है because she's working from home. Late evening, then Priya का में join करा दीजिए ना. हाँ, प्रिया का भी 8 to 9 है ना? प्रिया जी का 9 to 10. कब शुरू वाला है? अभी शुरू तो it is going on. अभी तो it's going on. Okay. तो अभी तो no point because it's almost done. अब तो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है उनका. हाँ. अब तो ऑलमोस्ट प्रिया का फिनिश होने वाला है. I'll be the first one to finish. उसके 2 days बाद में सुवर्णा started and उसके I think 5 days का gap है मेरा और प्रिया का में 4 or 5 days का gap. तो अभी तो no point. I think we are almost towards the end. Yeah. So next I think she'll start soon only. Thank you much. So but what she will start any idea? Magic or power? What? Power she has recently done. So I think पावर तो हमने किया उनके साथ में प्रिया अभी किए ना, तो I don't think so पावर इतना जल्दी वापस स्टार्ट करेंगी. I think she will start with magic again. Okay, so अभी right. ठीक है. Her magic is going on. Yes, it is going on. तो अभी तो बहुत निकल गया ना. हाँ. 14 days हो गए. Right. So Payal ji, when are you going to start power? Yes, sort of it, Preeti ji. Not in July at least, maybe in August. That's fine. That's fine. That's not a problem. But whenever you start, I would love to join again. Yes, even me, myself. Even I love Yeah, we all want to join. Okay, sure. I'm waiting for Whatever, Bhavani to whoever start. is starting, whenever they are starting, I'll be sharing all the details in the group. Oh. Priya ji ka mein to she herself will, share if you are there in that group. Otherwise, also if I get, I'll share it. Yeah. Up to who Bela ji in her group as well. Sorry? I'll you put in on this group only, na? Who? Yeah. You will be putting on this group only, Yes, na? yes. This is intact right from the first session. ये group maintained है. So whatever I share in this group only. No मिरर वर्क भी किसी ने शुरू किया है ना पायल जी? Mirror work. We requested Ashmin ma'am to start mirror work, but she said if you can, if a lot of people are interested, then only she'll start because वो तो बहुत छोटे forum पे करती नहीं है ना. She needs around 100-300 people. So, and there are many, who are doing like some mirror work also. Maybe someone must be doing. Yeah, someone is doing. I'm in that only. Like 3 या 4 दिन ही हुए उसका. The 4 classes. Who has started? Not like हम लोग के friends में से कोई नहीं है. नहीं कोई friend circle है. क्या Power of Dreams. To Bajaj, I think. Okay. तो अभी कितने सेशन हो गए उनके? 4 days. सुमन जी. तो कैन वी स्टार्ट हमारा, क्योंकि ये पावर और मैजिक दोनों खत्म होने वाला है within 3-4 days. I'll send you her number. You can talk to her personally. फिर वो अपना group अपना invite आपको भेज देगी. Right. Okay. That will be better. I don't know exactly क्या है. Because that is again 21 days, mirror work. Yeah, Right. that one is also. So again 21 But days. इसमें क्या है ना, you don't have to be like every day Zoom meet नहीं है, only once a week. Every day is an assignment.
वो भी बस मिरर के सामने कुछ करना है एंड थोड़ा कुछ जर्नल है, कुछ करना है, उसमें इतना वो नहीं है लाइक अभी अपनी ये जो Okay. कर रहे हैं. जस्ट एवरी डे इन लोग का अपना एक असाइनमेंट अ डे बिफोर दे गेट एंड वंस इन अ वीक इट्स अ जूम. Very good. व्हाट दे आर डूइंग. Everyone is setting, the way once in a week. Otherwise, what we do is like 21 days continuous. That is better. इससे क्या है कि हाँ. everyone does their work ऐसे, नहीं तो होता नहीं है. होता नहीं है, वो टेम्पो टूट जाता है, नहीं नहीं, मुझे अरे भी ये लगता है हाँ. कि ये जो मैं ज्वाइन की हूँ ना, तो इसमें क्या होता है ना, एवरी डे का क्लियर भी नहीं हो रहा है बिकॉज वी आर नॉट इन कॉन्टैक्ट. नो, वो दे तो दी असाइनमेंट बट वी आर नॉट क्लियर इतना कि भाई जैसे बहुत कुछ हो जाता है ना, कुछ कुछ हम लोग को पूछना हो तो एवरी डे अगर जूम मीट नहीं है तो वी अवॉइड कि छोड़ो बाद में पूछ लेंगे. तो थोड़ा सा वो इट्स बेटर एवरी डे का सेशन हो, दैट इज बेटर. Yes. इज नाइस. Sunita ji, you are looking very beautiful today. All Thank decked you. out. या पार्टी में आज कुछ ऐसी फैमिली फंक्शन शादी चल रहा है. पता है मैग्निफिसेंट आउटकम इज अमेजिंग. आई टेल यू पायल जी, मेरा तो हाँ. ऐसा हो रहा है कि छोटा सा कुछ भी होता है या छोटा सा कुछ भी काम होता है, खाली मैग्निफिसेंट आउटकम देखी जा रही है. पता है. Wonderful. Absolutely, it works. Yes. मतलब आई कुडंट बिलीव, मुझे ऐसा हो रहा है कि छोटा सा खाली कोई ध्यान आता है, मैग्निफिसेंट आउटकम ध्यान आता है. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. और आपका तो बहुत ग्रेटिट्यूड. आई नो यू प्रैक्टिस अ लॉट, राइटिंग एंड जर्नलिंग एंड एवरीथिंग. आज सुबह तो मेरे को सलोनी से हेल्प लेना पड़ा. मेरे को मैग्नेट चाहिए था, एक चाबी ऐसे मैग्निफिसेंट आउटकम थी. मैं एक की मिल जाए, मैग्नेट जरूर चाहिए मेरे को. ऐसा जगह चला गया था वो. जरूर सलोनी को मेरे को प्लीज फटाफट एक ही फोन करी और खाली सलोनी के पास मेरे को मैग्नेट मिला जिससे वो निकाल सके. अच्छा, This voice is is great. amazing. Yeah, absolutely, it is amazing. The practice is amazing, and I'm telling you, it works all the time. And कितने जन का sharing है? Magnificent outcome तो ऐसा है कि it's very useful also day to day में. These are the small magic. देखिए इतना gratitude, वो छोटे छोटे gratitude में भी work कर जाता है, right? For bigger dreams. So laughing. मैं सुबह साड़ी पहनी थी ऐसे, हम लोग क्या कुछ फंक्शन को था, तो साड़ी का वो जो पेटीकोट का आधा तीन पहनने का वो रस्सी इतना टाइट हो गया था कि मुझे कैंची से काटना पड़ता. मैं उसको भी मैग्निफिसेंट आउटकम पूरा पीस वो भी तुरंत वही याद आया मेरे को. तो लग रहा था मजा मेरे को. क्या बोलूं. Yeah, so you started playing with universe. उनको अपना friends बना लिया. Yeah, you become universe friends. It really works. That's nice. That's so sweet. Yes. So Actually, I want. हाँ जी. Yes, सविता जी. हाँ, actually I wanted मेरा daughter in law के लिए said at least 2 carats का तो solitaire ring होना ही चाहिए, not less than that. I wasn't saying anything. घर में वो उसका discussion चल रहा था, ये ले लेते, वो ले लेते, I wrote in my dream list, कहीं पर भी जाती, I support खाली magnificent outcome की बस हो जाए. तो लास्ट में अपने आप सब मान गए, हो गया. Wow. Lovely. ऐसे कि उससे कम का तो अच्छा नहीं लगेगा, बट सबका एग्रीमेंट से वो तो अच्छा लगता है. हाँ, तो बस सब मान जाए. आई वाज सेइंग कंटिन्यूअस वही करती जा रही थी, बस सब एवरीबॉडी एग्रीड और हो भी गया. Lovely. थैंक यू. More and more magic to all of you. So let's start and read. It's a very थोड़ा सा वैसे समझ सकते हैं. Transform mistakes into blessing मतलब क्या? We can, as you can see in the picture, बहुत से काले बादल है. Only I think Dimple ji is reading ना. बाकी सब अपने आप को म्यूट कर ले. Yes, Payal. Yes. So what we can see in the picture कि काले काले बादल हैं and उसमें कहीं कहीं पे देखिए कुछ कुछ लाइट्स भी हैं और एक जगह से तो काफी लाइट्स आ रहे हैं. तो ये क्या चीज के बादल हैं? ये काले बादल हो सकता है below the feeling के जो इमोशंस होते हैं उनके, you are sad, you are depressed, your anxiety, maybe not feeling good, जो dark feelings होते हैं. So this is what life is all about, एक काले बादल. लेकिन कहीं पे उसमें जो थोड़ी बहुत कहीं भी रोशनी है, तो हो सकता है उस समय हैप्पीनेस मिला हो, जॉय मिला हो, उसके हैं. लेकिन उसके बाद एक काले बादल से थोड़ा सा हटके वहां से पूरी रोशनी आ रही है. तो वो कब आती है, कैसे दिखाई देती है हम लोग को?
That is only through gratitude. जब हम लोग इतना gratitude और वहां से आए हैं, अगर हम लोग अपने मिस्टेक से अगर हम लोग कुछ सीख लेते हैं, लेट मी म्यूट ऑल. डिम्पल जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा. Can I start this? तो जब हम लोग अपने मिस्टेक से कुछ सीख लेते हैं, तब हम लोग वो काले बादल वहां से हटने लगते हैं. नहीं तो क्या है, वो अंदर ही अंदर कुछ भी गलती की, किसी और को ब्लेम किया, वो अंदर 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 है हम लोग को. और हम लोग को वो क्या कर रहा है, वो मिस्टेक से हम लोग को ब्लेम तो कर दिए, लेकिन हम लोग को खुद को अंदर से पता है इट माइट बी माय मिस्टेक एज वेल, या मेरी गलती है. उससे हम लोग कुछ सीखते नहीं है, पर वो अंदर ही अंदर हम लोग उसको रख के रखते हैं. जब हम लोग ग्रेटिट्यूड दे के उससे अगर हम लोग ढूंढ लेते हैं कि उससे मैंने क्या सीखा, तब ये काले बादल हटने लगते हैं और वहां से ऐसी जॉय, हैप्पीनेस, ये सब की लाइफ जो दिख रही है, रोशनी पॉजिटिविटी की, वो हमें दिखने लगता है. दिन में घर में हर रोज कुछ ना कुछ होता है, ऊपर नीचे होता रहता है टाइम्स. तो ये हर रोज के ड्रामे जो है, दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट. होते हैं ना, जिंदगी एक जंग है. सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम एवरी एरिया एंड एवरी स्फीयर ऑफ अवर लाइफ. हर सिचुएशन में हमें कुछ ना कुछ सिखाने को लिए आती है. सीखना चाहिए, बैलेंस बनाना चाहिए, एंड वी शुड मूव अहेड एंड मूव ऑन. So how can we learn from our mistakes? इसको बोलते हैं जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलिए. आप ये स्क्रीन से पढ़ रहे हो ना डिम्पल जी? You do reading from Maybe I'm writing the book. I'm writing the book. All right. Yeah. Please start. Day 26. Magically transform mistakes into blessings. Turn your wounds into wisdom. Oprah Winfrey, B. 1954, media personality and business women. Yeah, turn your wounds into wisdom. मतलब आप अपने जख्मों को बुद्धिमता में बदलिए. अब ये देखिए क्या है, वो ओपरा विनफ्री, एवरीवन मस्ट बी नोइंग कौन है. Now she is saying she is a great media personality. She is still there. उनके बहुत सारे YouTube में वीडियोस हैं, अगर आप उनको सुनेंगे, इंस्पिरेशनल, मतलब आपको इतना इंस्पायर करेंगी. सीखना चाहिए what she has gone through in her life and how she has come out of it. All by practicing gratitude. वो भी यही बोलती है. इन रिलेशनशिप में देखिए, करियर में देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग को होता है, कहीं ना कहीं हम लोग सहे हैं, गलतियां हुई है, उससे हम लोग जख्म मिले हैं हमें. तो उसको हम लोग, आप क्या उसको लेके हम लोग क्या रोते रहते हैं या किसी को ब्लेम करते रहते हैं कि मेरा रिलेशनशिप सामने वाले के कारण खराब हुआ है, उसकी गलतियों से खराब हुआ है, मे बी माई करियर इज नॉट फ्लरिशिंग बिकॉज ऑफ सम अदर पीपल. या हम लोग उस सिचुएशन से कुछ सीखते हैं सो दैट वी डोंट रिपीट दैट मिस्टेक. हम लोग को बोलते हैं कि हम लोग इस लाइफ में आए हैं, इस अर्थ पे आए हैं कुछ सीखने के लिए. इफ वी डोंट लर्न, then again and again we are reborn to learn that. A purpose of our life is to keep learning. We all are seekers. तो अगर हम लोग उससे नहीं सीखते हैं, एक बार उस गलती से नहीं सीखते, तो क्या होता है, इसे बोलते भी है ना, you keep repeating the same mistake again and again. तो वो बार बार हमारे सामने आती जाएंगी जब तक हम लोग उससे सीख न ले. तो क्यों ना ऐसा करें कि instead of complaining and blaming others, उसी समय अगर हम लोग उससे सीख लेते हैं, तो वो हमारी लाइफ में दोबारा कभी घटित होगी नहीं. We'll never experience that again. Yes. Every single mistake is a blessing in disguise. Today's magical practice will prove it, because you are about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. Yes. तो हर कोई गलती जो है वो एक तरह से डिस्गाइज, मतलब हमें कुछ सिखाने के लिए आई है. अब वो हमारा चॉइस है, हम उससे कुछ सीखते हैं कि उसमें खाली कंप्लेन करते हैं. Yes. A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or write, and we don't give it a second thought because we know that through their mistakes they will learn and eventually master what they are trying to do. So why is it that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes, and if we didn't make them, we would never learn anything and we would not grow any smarter or any wiser. Yes. जब बच्चे गलती करते हैं, जब वो बाइक से गिरते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, इट्स ओके बेटा, गेट अप एंड राइड अगेन, इट्स ओके गेट अप एंड राइड अगेन. आप गिरते गिरते ही आप सीख जाओगे.
बट व्हेन दे आर अ चाइल्ड तब हम लोग उनको बोल देते हैं, बट हम लोग से जब गलती होती है वी आर ऑलवेज हार्श ऑन आवरसेल्व्स कि मैंने ये गलती की तो कैसे की, एंड व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू पुट द ब्लेम ऑन अदर पर्सन कि उसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, बट व्हाटएवर इज हैपनिंग इज आवर चॉइस. It is not happening because of anyone else, but all because of us. उस सिचुएशन में उस समय हम लोग अपने आप को कैसे लेते हैं. तो सेम रूल which applies to children also applies to us also. You know, we all make mistake and it is okay to make mistakes. हमें अपने आप को बार बार ये बोलना है it's okay to make mistake, but the thing is at times we बहुत regret होता है and we start saying again and again why did I do this, why did I do this. हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा हमको लगता है हार्श हो जाते हैं, हम लोग अपने आप को पनिश करते रहते हैं. बट वी मस्ट से इंस्टेड उस सिचुएशन पे हम लोग को एनालाइज करना चाहिए कि किस गलती से हुआ एंड नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट मेक दैट मिस्टेक. एंड यू हैव ऐसा सोचना चाहिए कि मुझे क्या सीखने को मिला इससे. सोचिए आपने किसी को उधार दिया एंड एवरीवन वाज सेइंग डोंट गिव हिम, लेकिन आपने दिया एंड दैट पर्सन रन्स अवे विथ योर मनी. ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेइंग मैंने बोला था, एवरीवन विल से मैंने बोला था फिर भी तुमने दिया. हम लोग भी रिग्रेट किए कि why did I give to that man, सबको मुझे मना किए थे, I shouldn't have done that, I should have. But then we should always learn from those mistakes, कि ठीक है next time से I will not give to that person, isn't it? Instead of आपको कुछ सिखा के गई है वो सिचुएशन, right? तो वो ब्लेम करने के बजाय we should learn from that. We have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can't hurt, but if we don't learn from the mistakes we have made, the pain we have suffered from it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurts us so much that we finally learn from it. It's the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. Right. So हमें ये freedom मिला है to make our own choices, and that means we have the freedom also to make mistake, right? अब बोलते हैं देखिए हम लोग एक human being को इतना choice मिला है, animals लोग को मिला है इतना freedom, इतने choices नहीं. अगर काउ ग्रास खाता है, वो अगर उसके सामने मीट भी आ जाएगा वो नहीं खाएगा, बिकॉज उनको चॉइस नहीं मिला, यूनिवर्स उनको चॉइस नहीं दिया है. ही हैज टू ईट ग्रास ओनली. वो भूखा मर जाएगा बट ही विल नॉट टच. सेम वे लायन विल नॉट ईट ग्रास, उसको मीट ही चाहिए होता है, वो किल करेगा, जो भी करेगा, नहीं मिलेगा तो भूखा मर जाएगा. और हम लोग के पास तो कितने चॉइसेस एज ए ह्यूमन बीइंग. आई थिंक वी आर सो ब्लेस्ड, हम लोग के पास हर चीज में चॉइस है. So we are only given the choice, freedom to make our own mistakes also. ये भी हमारी choice है, क्योंकि whatever is happening is because of our own choice. उसको लोन देना था कि नहीं देना था, वो मेरा choice था ना. So we should not blame anyone else. We were given a choice, we gave, then why to blame that other person who was so dishonest? Why did he run away with my money? Choice तो मिला था ना. Animals को तो वो choice भी नहीं है. So we should think कि we are so blessed to be born as a human being. So mistakes can hurt, of course it will hurt, but अगर हम लोग उससे कुछ सीखते नहीं हैं तो वो क्या होगा. अगर आप हम उससे सीखे नहीं कि मेरे को उसके बारे में और पता करना चाहिए था, तब उसे देना चाहिए था. If everyone is saying no, there must be some reason. तो क्या करेंगे, हर वापस कोई आएगा, वापस आप दोगे, वापस कोई आपको धोखा देगा, ऐसे ही चलता जाएगा. तो वो मिस्टेक्स बार बार आपके सामने वो सिचुएशंस अराइज होते जाएंगे जब तक आप उससे कुछ सीखोगे नहीं. So इसीलिए वो हम लोग क्यों इतने बार मौका दे हम लोग को हर्ट करने का. Until and unless we learn, from it, mistakes, finally learn from it, it will keep appearing. So it's the very reason why mistakes hurt. और इसीलिए बोलते हैं ना, दूध का चला छाछ भी फूंक मार मार के पीता है. A burnt child dreads fire. So that's what. So if we do learn from them and don't repeat them, that's the idea. Yes. To learn from a mistake, we first have to own it. And this is where many people can become undone, because they often blame someone else for their mistake. So now we need to research or reflect into our own life and dwell and see कि अब हम लोग ने लाइफ में कब कहाँ कोई गलती हुई थी. बच्चे को डांटा, मे बी बहुत हार्शली मिसट्रीट किया. If you own up that mistake, then only you can find, कि मेरी क्या गलती थी and what do I learn from the situation. If we don't own it up and we keep putting blame on someone else, हम लोग उस सिचुएशन से कभी कुछ सीख ही नहीं सकते. पहले तो एक्सेप्ट करना होगा
then only we can, find it out ki what mistake I made. So those are the oops moment when we say oops, बोल तो दिया, कर तो दिया, पर हम लोग को पता चलता है ऐसा नहीं करती तो भी अच्छा था, चलता था. And this is where many people can become undone. That means because they often blame someone else for their own mistake. So we have to own it up. Yes. Let's consider the scenario of being pulled over by the police for speeding and being given a speeding ticket. Instead of taking responsibility for the fact that we are speeding, we blame the police because they were hiding in the bushes on the highway around the bend. We could not see them. They had a radar gun, and so we didn't stand a chance. But the mistake was ours because we were the one who chose to speed. We were the one who chose to speed. तो ये एक सिचुएशन है जहाँ पे जनरली हम लोग भी ऐसा ही करते हैं ना. हम लोग ने लॉज को जो है ट्रैफिक रूल्स को माना नहीं, स्पीड अप किया, बट वी ट्राई टू ब्लेम द पुलिसमैन ओनली. वो तो पैसे लेने के लिए ही वहां खड़ा है, उन लोग का तो काम ही ये है टू स्टॉप द कार एंड टेक. जो स्पीड किया उसको तो छोड़ दिए, वो गलती को भी हम लोग किसी और पे डाल देते हैं. So that is what we do. And until unless we make mistake, I think I remember when I started driving, when I learned driving, तो हम लोग के कोलकाता में ये वन वे का बहुत था चक्कर, अभी भी है. And there was this fixed time. अभी जैसे 1 o'clock चेंज होता है वो डायरेक्शंस, at that time it was 12 in the afternoon. तो वो हर बार जब मैं नया नया सीखी थी तो वो वन वे में चले जाते थे, फिर पता चलता था oh no, now I have to take a huge turn and come back. तो वो क्या कि वो बार बार वो जब ज्यादा टाइम लगने लगा ना, आई स्टार्टेड रीचिंग लेट फॉर माय क्लासेस एंड ऑल, तब वो तभी सीखते हैं. तो इंस्टेड ऑफ कि ये क्या, अब आई कुड हैव ब्लेम्ड एंड आई कुड हैव केप्ट, बोली भी थी एक बार कि क्या इन लोग वन वे का लगा देते हैं, एवरी टाइम आई गेट लेट फॉर माय क्लास, इन लोग क्या कभी 12 बजे इधर कर देते हैं फिर उधर कर देते हैं. Either I keep complaining and keep facing the same situation. But then, after a week or 10 days, then I learned कि नहीं, ये लेन 12 से इधर इस डायरेक्शन में जाता है, वो लेन इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में जाता है. It was a hard way, but I learned. So that is how it is. We have to learn from a mistake. First, we have to own it that it is my mistake that I don't remember. Yeah. Yes, Dimple ji. The problem with blaming other people for our mistakes is that we will still suffer the pain and consequences of our mistake, but we didn't learn from it, and so bingo, we all are trapped making the same mistake again. तो क्या होता है, किसी और को ब्लेम करने से क्या हम हल्के हो जाते हैं? नो. किसी और के लिए कंप्लेन किया तो वो एनर्जी तो हम ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना अंदर ही अंदर. उसके हम लोग वो आप कितना भी बोलते हैं ना, सामने वाले को बोल दीजिए, झूठ बोल दीजिए, लेकिन आपको अंदर से पता है. It tells you whose mistake it is. So the problem with blaming other people for our mistake is that we will still suffer the pain and consequences of our mistake. है ना, वो तो हम लोग को सफर करना ही है, बट हम लोग उससे कुछ सीखे नहीं. Instead of learning from it, we are still blaming it. किसी को और ब्लेम करने से क्या हुआ, ये तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारे कारण कैसे एनर्जी दिया नेगेटिव, और वो हम लोग ने खुद भी वैसा ही एब्जॉर्ब किया. सामने से भी उसका रिस्पॉन्स आएगा नेगेटिव, एंड इट इज ऑल गोइंग इनसाइड अस एंड इट गेट मैग्नीफाइड. You are a human. You will make mistakes, and it's one of the most beautiful things about being human. But you must learn from your mistakes. Otherwise, your life will have a lot of unnecessary pain. How do you learn from a mistake? Gratitude. Yes. तो कौन सा तरीका है जिससे हम लोग अपने मिस्टेक से सीख सकते हैं? ग्रैटिट्यूड. तो कंप्लेन करने के बजाय हम लोग ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं, और नहीं करेंगे तो लाइफ में ऐसे सिचुएशंस बार बार आते जाएंगे और हमें परेशान करते जाएंगे, और एक के बाद वो एज अ रिजल्ट वो हम लोग का चेन बनता जाएगा. Yes, Dimple. No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can to be grateful for in a mistake, you magically transform the mistake into blessings. Mistakes attract more mistakes, and blessings attract more blessings. Which would you prefer?
Yes. So as the law of attraction says, mistake like attracts like. तो अगर हम लोग मिस्टेक करेंगे, मिस्टेक करेंगे कोई बात नहीं, और मिस्टेक भी हम लोग करेंगे, ब्लेसिंग करेंगे और भी ब्लेसिंग, लेकिन उससे अगर वो कुछ सीखे नहीं तो ऑल द मोर वो वैसे ही मिस्टेक्स और भी हम लोग की सिचुएशंस अराइज होते जा रहे हैं ना, जो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उससे सीख नहीं रहे हैं, वो तो एक और मिस्टेक कर रहे हैं, एक के बाद और मिस्टेक हो रहा है हम लोग का, एक गलती के ऊपर दूसरी गलती और कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम लोग उसको सीख लेंगे, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही हम लोग को उसका फल मिलता जाएगा। गलती करना तो एक तो स्टेपिंग स्टोन है, बोलते हैं ना, इट्स ओके टू मेक अ मिस्टेक। एक गलती करेंगे तो वो रिपीट नहीं करेंगे लाइफ में। ऐसा नहीं कि बिना मिस्टेक किए जो आगे बढ़ जाता है ना, वो बहुत दिन तक आगे नहीं बढ़ पाता है, और जो मिस्टेक करके जाता है, वो गलती गिर गिर के जो सीखता है ना, वो लाइफ के लिए उसको एक लेसन मिल जाता है। So it's good to make a mistake. We should own it up. We should learn and move ahead. Otherwise हम लोग क्या करेंगे, उसी सिचुएशन में स्टक रह जाएंगे, क्योंकि वो मिस्टेक तो बार बार आपको हो रहा है। आपको लग रहा है मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, फेल हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, फेल हो रहा है, क्योंकि जो फेल होता है, आप गलती हम लोग जज जन पे डाल देते हैं, इसके कारण उसके कारण इसके कारण मेरा बिजनेस नहीं चला, फेल। तो अगेन एक न्यू बिजनेस, अगेन यू स्टार्ट लिविंग, तो क्योंकि वो सिचुएशन बार बार आएगा, वी आर मेकिंग दैट मिस्टेक, राइट। तो उससे अगर हम लोग सीख लेते हैं, तो नेक्स्ट बिजनेस जब करेंगे वो सिचुएशन आएगा ही नहीं। इट वाज अ स्टेपिंग स्टोन एंड वी कैन मूव अहेड, बट द चॉइस इज आवर्स। वी ओन इट अप, वी ओन अप आवर मिस्टेक एंड लर्न फ्रॉम इट, और वी just keep putting blame on other people. Today, think about a mistake you have made in your life. It doesn't matter whether it was a big or a small mistake, but choose one that still hurts when you think about it. Maybe you lost your temper with a person close to you and the relationship hasn't been the same since. Maybe you put blind faith in another person and got burned. Maybe you told a white lie to protect someone, and because of it, you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something, and it all went wrong and ended up costing you a whole lot more. You might have thought you were making the right decision about something, but it completely backfired on you. Yes, so आज हम लोग को एक ऐसा सिचुएशन ढूंढना है। You have made a mistake. It doesn't matter, अगर कोई छोटी गलती है, चाहे बच्चे को डांटना से लेके या कोई बिजनेस करियर रिलेशनशिप का हो सकता है, तो हम लोग को वैसा एक चूज करना है जो हम लोग को बहुत पिंच कर रहा है और हर्ट कर रहा है। रिलेशनशिप भी हो सकता है। सो मे बी यू लॉस्ट योर टेम्पर विद अ पर्सन क्लोज टू यू, है ना। हम लोग गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, बाद में कितनी बार रिग्रेट करते हैं ना, इतना जरूरी नहीं था कि इतना टेम्पर दिखाने का, ऐसे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी। एंड द रिलेशनशिप हैजंट बीन द सेम, लेकिन वो क्या बोलते हैं ना, तीर कमान से तो निकल गई, वो वापस तो आ नहीं सकती है, राइट। So maybe you put blind faith in another person and got burned. हो सकता है कि आप, जैसे मैंने बोला था, आपने लोन ब्लाइंडली किसी को दिया, और आप वैसा भी हो सकता है, और किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा कि आप ये बात किसी को मत शेयर करिएगा, आई एम शेयरिंग विद यू, बट द अदर पर्सन मे बी confided in to someone else. Maybe you told a white lie, आपने झूठ बोला किसी को बचाने के लिए, and because of it you ended up in a difficult situation. आपने बोला ये तो मैंने किसी की अच्छाई के लिए किया, लेकिन कभी कभी हम खुद भी फंस जाते हैं। आपने किसी you might have chosen the cheaper option on something and it all went wrong, and आपने सोचा कि अरे इसका प्राइस कम है, चलो क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ऐसा होता है ना, प्राइस कम है तो क्या हुआ, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन एक बैकफायर कि आपका सेल गिरा ही नहीं, बल्कि आपको बहुत सारे रेपकर्शंस उसके सहने पड़े, क्वालिटी इज नॉट गुड एंड योर बिजनेस बैकफायर। So you might have thought you were making the right decision. उस समय लग रहा था कि नहीं, मैं तो ठीक ही कर रही हूँ, एकदम परफेक्ट है, this is what the business is supposed to be done this way, but it completely backfired on you. हो जाता है, but it is okay, it is okay. हम लोग उसको भी कैसे उसमें से सीख के आगे बढ़ सकते हैं। Yes. Once you have chosen a mistake to magically transform into blessings, look for the things to be grateful for. To help you, there are two questions you can ask yourself. What did I learn from the mistake? Or what are the good things that come out of the mistake? Right. तो कभी भी ऐसे सिचुएशन में आए तो हम लोग को दो क्वेश्चन पूछना है कि मैंने उस सिचुएशन से क्या सीखा। एक तो ये है कि मुझे थोड़ा सा, मे बी किसी पे अगर आप बर्स्ट आउट हो गए हैं, आपका यू वेंट आउट योर एंगर ऑन समवन, अपने बच्चों पे या अपने हस्बैंड पे या किसी पे भी,
तो हम लोग उससे क्या है कि मुझे थोड़ा सा और धैर्य रखना चाहिए, आई शुड बी मोर एट काम, थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए. एंड व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट केम आउट ऑफ दैट मिस्टेक, ये क्वेश्चन कि इससे और क्या अच्छा हुआ. एक तो मुझे ये सीखने मिला, हो सकता है सामने वाला एक बार तो काम करने लगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, यू लूज रिस्पेक्ट ऑल्सो ना. अगर आपने किसी को डांटा तो उसको आपके लिए रिस्पेक्ट आप कम हो जाती है उसकी नजरों में. एंड वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ क्वेश्चन, व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट केम आउट ऑफ दैट मिस्टेक, कि अब से मैं ऐसा सिचुएशन होगा तो मैं अपना ही रिस्पेक्ट खो रही हूँ, है ना. तो मुझे अपने रिस्पेक्ट बचा के रखना है, तो मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना है. मुझे ऐसे सिचुएशन आए तो आई शुड, मे बी आप अपना तरीका निकालिए, स्टार्ट काउंटिंग 10, मे बी वहां सिचुएशन से मैं एक बार हट जाऊंगी. अगर आपका कंट्रोल नहीं है, आप उस सिचुएशन से वहां से हट जाइए. राइट. तो ऐसे क्वेश्चन करके हमें फाइंड आउट करना है. The most important things to be grateful for about every mistake are the things you learn from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that come out of it and altered your future for the better. Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Every blessing you find has magical power. Write out your list in a gratitude journal or type them on a computer. राइट. तो हम लोग को उसमें से 10 ब्लेसिंग्स ढूंढना है. क्या है, सोचिए आप कुकिंग का या काम कर रहे हो, आप किसी के यहाँ पे खाना भिजवाए, रोज बहुत अप्रिसिएशन आता है, एक बार एक जगह से कंप्लेन आ गया, अब आप उसको कैसे लेते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू. राइट. या तो आप उसको बोल सकते हो, आप हर एक को बोल सकते हैं, देखो मैं हमेशा कितना अच्छा खाना भेजती हूँ, आज भी मैंने परफेक्टली वैसे ही बनाया जैसा हमेशा बनाती हूँ, पर उनके यहाँ से ये कंप्लेन आ रहा है. आई थिंक दे हैव नो टेस्ट ओनली, उनको कंप्लेन करने की आदत है. कोई कोई क्लाइंट्स ही ऐसे होते हैं. ईदर यू टेक इट दैट वे एंड यू स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट द क्लाइंट, और मे बी आज ये वाला आइटम तुमने बनाया था अपने स्टाफ को लिए, तुम्हारे कारण देखो मुझे इतना कुछ सुनने मिला. स्टार्ट पुटिंग ब्लेम ऑन दी अदर पीपल. वो स्विगी वाला अच्छे से इसको कैरी करके नहीं लेके गया होगा, पूरी इधर उधर हो गया होगा. मेनी कंप्लेंट्स वी कैन डू, or we can learn कि I'll take care of it. Maybe if you own up my mistake कि हाँ जी मेरे से हो सकता है आज ये डिश अच्छा नहीं बना, थोड़ा सा हो गया होगा, I'll look into it. और आप उसको बिल्कुल ट्राई करो और देखो मैंने कौन से मसाले कम बेसी डाले थे, आज क्या ऐसा चीज था जो मैंने नहीं डाला, it did not taste the way it always does. आप उसे सीखोगे, आप उसको पता चलेगा. So it is all on us. We complain or we learn from that, right? Let's take the example of being caught speeding by a police car and receiving a fine. First, I'm grateful to the police for wanting to protect me from harming myself, because after all, that was all they were trying to do. Second, I'm grateful to the police because if I am honest with myself, I was thinking about other things and I was not concentrating on the road. Third, I'm grateful to the police because it was foolish to put myself at risk, speeding with a tire that needed to be replaced. Fourth, I'm grateful to the police for the wake-up call. Being pulled over did affect me and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. Fifth, I'm grateful to the police because somehow I had a wild idea that I could speed without getting caught and without putting myself in danger. The seriousness of the police made me face up to the fact that I was putting both myself and others in serious danger. Sixth, I'm grateful to the police because if I think about my own family being put in danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers. Seventh, I'm really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads. Eighth, I'm grateful to the police. They must see heartbreaking situation every day, and all they are trying to do is protect my life and my family's life. Ninth, I'm grateful to the police for making sure that I arrived home safely and walked through the door to my family as I usually do. 10th, I'm grateful to the police because of all the possible consequences that would have stopped me
from my speeding. The police pulling me over was the least harmful consequence, and it could have been the biggest blessing of my life. राइट तो आप देखिए कि एक पुलिस से पकड़े जाने पर उन्होंने इसमें से अपने मिस्टेक में से 10 ब्लेसिंग ढूंढ के निकाला कि क्या वो 10 चीज है कि अपनी गलतियों से सीखे हैं. राइट तो हम लोग को भी आज अपनी गलती से ऐसे 10 ब्लेसिंग ढूंढ के निकालना है. I would strongly urge you to take my mistakes you have To take made in any your mistake, life. not my mistake, any mistake. Sorry, to take any mistakes you have made in your life that you still feel bad about. And in your own time, follow the magnificent and magical practice. Think about it. Through one mistake, you have the power to bring many blessings. What else guarantees dividends like that? राइट तो आज हम लोग को अपना ही ऐसा कोई मिस्टेक ढूंढना है लाइफ में जो हम लोग अभी तक उसके लिए शायद हम लोग खराब फील कर रहे हैं. चाहे हो सकता है आपका कोई फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप हो या करियर हो या बिजनेस हो या बच्चे के साथ हो, एनीथिंग. तो और उसको हम लोग को मैग्निफिसेंट करना है. फॉलो दिस मैग्निफिसेंट एंड मैजिकल प्रैक्टिस. थिंक अबाउट इट क्योंकि इससे हम लोग बहुत कुछ हो सकता है उस समय नहीं सीखे, आज सीख लें. एंड यू हैव द पावर टू ब्रिंग मेनी ब्लेसिंग्स. What else guarantees dividends like that? कोई और गारंटी देता ही नहीं है. बट ये हम लोग जहां जहां पे दर्द ढूंढेंगे तो दर्द मिलेगा. राइट ब्लेसिंग ढूंढेंगे तो ब्लेसिंग मिलेगा. इट इज एज सिंपल एज दैट. अगर उसको हम लोग दर्द करके अंदर बैठा रखे हैं, उसमें से दर्द ही ढूंढेंगे. जब उस इंसिडेंट को याद करेंगे आपको सिर्फ दर्द 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 ढूंढ रहे हैं तो वो दर्द ही बढ़ता जाएगा. और अगर हम लोग उसमें से ग्रेटिट्यूड ढूंढेंगे, ब्लेसिंग ढूंढेंगे तो हम लोग के लाइफ में और ही ब्लेसिंग्स आते जाएंगी. सो इट इज ऑल ऑन अस. थ्रू ग्रेटिट्यूड. जैसे ब्लैक बोर्ड है, उसमें पहले के कितने ही कुछ लिखा हुआ है. ये हुआ मेरे साथ, ये हुआ इसके कारण हुआ, उसके साथ. उसको हम लोग इरेज नहीं करेंगे तो नया कुछ लिखेंगे कहाँ से? So let us all erase, learn from it, and then let us start afresh. क्योंकि हम लोग उसके ऊपर ही ऊपर लिखते जाएंगे तो hodgepodge हो जाएगा, isn't it? So magic practice number 26. Yes, please. Magic practice number 26. Magically transform mistakes into blessings. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Second, choose one mistake you made in your life. Third, find a total of 10 blessings you are grateful for as a result of making that mistake and write them down. Fourth, to help you find blessings, you can ask yourself the question, what did I learn from the mistake and what are the good things that come out of the mistake? Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, Dimple ji, for reading for all of us. So first and the Thank fifth. you, Payal ji, for giving me the opportunity. Thank you. So first and the fifth practices are the same. आज हम लोग को एक मिस्टेक which we have made in our life. आपको लगेगा कि मैंने तो कभी कोई मिस्टेक किया ही नहीं. ढूंढेंगे तो जरूर मिलेगा क्योंकि अभी तक हम लोग किसी और पे डालते आए. एंड देन उसमें से 10 ब्लेसिंग्स ढूंढ के निकालना है कि क्या गलती हम लोग ने उससे सीखी. तो टू हेल्प यू फाइंड द ब्लेसिंग हमें क्या करना है, 2 क्वेश्चन पूछेंगे ना. व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक एंड व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट केम आउट दैट मिस्टेक. ये क्वेश्चन 2 पूछेंगे तो आपको ये हेल्प करेंगे उसमें से ब्लेसिंग ढूंढने में. तो वो हम लोग को ढूंढना है और उसको लिखना है. एंड ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. टू टर्न योर वुंड. जो जख्म हम लोग को मिले हुए ना, तो एक तरह से हम लोग बोलते हैं इसको एक ऑपरेशन करना है. जो हम लोग को दर्द कोई किसी ने दिया है उसको हम लोग अपने मन में अभी तक रख के रखे हैं. आज हम लोग उसका ऑपरेशन करके उससे सीख के उसको हम लोग फिनिश ऑफ कर देंगे उसको भी. बिकॉज अब टुवर्ड्स द एंड है, हम लोग कोई भी एरिया को ऐसा छोड़ेंगे नहीं. बिकॉज ऑल दीज टर्न जो वुंड्स है ना, जख्म जो है ना, वो क्या बोलते हैं ना, उसको बार बार वो नासूर हो जाता है उसको रख के रखेंगे. तो नो पॉइंट कीपिंग दोज पेन. और उसमें से हम लोग देखेंगे अब से लाइफ में कोई भी ऐसा सिचुएशन आए तो हम लोग को ये सोचना है ये क्यों अकर हुआ, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, तो हम लोग इससे क्या सीख रहे हैं, इसमें मेरी क्या गलती है, तो उसको ओन अप करना है, किसी और पे नहीं डालना है. कुछ भी होता है तो हम लोग की बहुत इजी वे आउट है टू पुट द ब्लेम ऑन अदर पीपल.
यू नो, तो क्या मेरा मेरा और वो किसके लिए, किसी और के लिए नहीं है। हम लोग अपने आप को खाली ऐसे ही अपने आप को उसमें से निकालने के लिए बोल देते हैं। The thing is that is not, कहाँ से आवाज आ गई? थैंक यू कंचन जी। तो इट इज वेरी वेरी पावरफुल। एक तरह से ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करेंगे तो दर्द भी होगा कि क्यों मैं अपने जख्मों को कुरे दूं, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ओन वेरी हेल्थ एंड टू लर्न। सो कि अगर हम लोग उससे नहीं सीखे हैं और उसको रख के रखे हैं तो क्या होगा, ऐसा लाइफ सिचुएशन वापस हमारी लाइफ में अकर करेगा। कुछ कुछ होता है ना, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, ऐसे लोग मेरे लाइफ में क्यों आते रहते हैं बार बार, क्योंकि हम लोग उससे सीख ही नहीं रहे हैं। और एक बार सीख लेंगे और उसको खत्म कर देंगे ना, वैसा अकर होना लाइफ में बंद हो जाएगा। तो फॉर वंस एंड ऑल लेट्स पुट एन एंड टू इट। तो पेन होगा, लेकिन लेट्स, इसीलिए बोलते हैं टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम। उसको बुद्धिमत्ता में आज हम लोग उसको बदल देंगे। और जो खुशी जो हम लोग किसी और में ढूंढ रहे हैं ना, वो खुशी हमारे अंदर ही है, वो हम लोग को चॉइस है। जैसे बोलते हैं कि इफ आई डोंट लाइक पेंटिंग, राइट, एंड इफ सारिका जी लाइक्स पेंटिंग, तो खुशी कहाँ पे है, पेंटिंग में है कि सारिका जी में है? सेम पेंटिंग है, शी इज लाइकिंग इट, उनको बहुत खुशी आनंद मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। तो पेंटिंग तो सेम है, तो पेंटिंग उस खुशी में, हैप्पीनेस जो है उस पेंटिंग में नहीं है, सारिका जी के अंदर है। सबकी खुशी अलग अलग है, सबको अपना आनंद अपना अपने अंदर, उनके अंदर है ना। कोई एक पर्सन है, किसी को बहुत पसंद है और किसी को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो उस पर्सन का कोई भी गलती नहीं है, उसका कोई रोल ही नहीं है। इट इज लाइक जिसको पसंद है, जिसको खुशी मिल रही है, वो उसके अंदर है, वो वैसा देख रहा है उसको। सो एवरीथिंग इज विद इन अस एंड वी हैव अ चॉइस एवरी टाइम। तो किसी और पे डालने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, बिकॉज इट इज ऑल, व्हाटएवर इज हैपनिंग इज ऑल बिकॉज ऑफ अस। पर हम लोग क्या करते हैं, उसकी खुशी देखो, वो अच्छा है इसलिए हमको खुशी मिल रही है, नहीं, आप अच्छे हो इसलिए आपको खुशी मिल रही है। बिकॉज पर्सन इज सेम, पेंटिंग इज सेम। मैंने पेंटिंग का एग्जांपल दिया है, कैन बी एनीथिंग, मे बी कुकिंग, मुझे कुकिंग पसंद नहीं है एंड यहाँ समवन आई थिंक इज वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग, तो कुकिंग में तो कुछ भी नहीं है हैप्पीनेस, इट इज विद इन मी, आई एम नॉट फाइंडिंग हैप्पीनेस इन कुकिंग, द अदर पर्सन इज फाइंडिंग हैप्पीनेस, उनके अंदर है खुशी। तो वो खुशी हम लोग को अंदर से निकालना है, ढूंढना है। जो भी काम कर रहे हैं उसमें हैप्पीनेस हम लोग को डालना है, मतलब जो अंदर है वही तो बाहर आएगा ना, जितना उसमें डालेंगे उतना हम लोग को अच्छा लगेगा, इट विल लिफ्ट आवर मूड आल्सो। और नहीं अच्छा लग रहा है देन डोंट डू इट। जिस चीज से खुशी मिले प्लीज डू ओनली दैट। आज का चैप्टर का कोई क्वेश्चन? Yes, Payal ji, I have a question. हाँ जी। Like suppose many times it happens ना कि situation कुछ और होता है and like we start scolding our children or something of that sort कि उनकी कोई गलती नहीं होती है उसमें, तो ऐसा सिचुएशन में उसमें क्या ब्लेसिंग्स निकालें? हाँ, तो आपको लगता है आपने किसी और का गुस्सा अपने बच्चे पे निकाल दिया, मतलब वही तो होता है ना। तो नेक्स्ट टाइम से आपको होल्ड ऑन करना है, आपको अपना मतलब आपको तुरंत अपने बच्चे पे रिएक्ट नहीं करना है। तो आपको अपना ये मिस्टेक में से आपने क्या क्या गलती सीखी पहले आपको ढूंढ के निकालना है। अच्छा, है ना, कि मेरे को अपना अपने पे संयम रखना है, यू हैव टू होल्ड ऑन टू योर एंगर। मैं इमीडिएटली बच्चों के एनवायरनमेंट से ही हट जाऊंगी ताकि उन पे रिएक्शन ना निकले। यू हैव टू फाइंड योर ओन वेज एक्चुअली, और आप क्या क्या सीख सकते हो उस सिचुएशन से। अच्छा, ओके, थैंक यू। बैठेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तो और बहुत कुछ मिल जाएगा। जनरली ऐसा ही होता है ना, बॉस ने बोलते हैं ना चेन रिएक्शन रिपल इफेक्ट होता है, हम लोग एक को करते हैं तो सबका होता है, निकलता है ऐसा एनर्जी। वो एनर्जी तो पास ऑन होता रहता है ना, अंदर ही अंदर हम लोग बोलते रहते हैं। कोई आपको डांटा, आपके हस्बैंड आपको डांटे, आपकी सास आपको डांटी, मेरा कोई गलती नहीं है, आप उनके सामने कुछ नहीं बोल पा रहे हो क्योंकि आप नहीं बोल सकते, आपको पता है ना, आपको फ्रीडम नहीं है कि यू कांट आंसर बैक। तो लेकिन आप अंदर अंदर क्या जा रहा है, नेगेटिव एनर्जी जा रही है अंदर। तो आप थॉट वही कर रहे हो ना, बिना गलती के मुझे डांट पड़ता रहता है, मुझे क्यों सुनना पड़ता है इतना, व्हाई माय लाइफ इज लाइक दिस, यू नो, आई डोंट हैव अ फ्रीडम। ये सब नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं एंड देन वो नेगेटिव थॉट के साथ है, बच्चे के एनवायरनमेंट में गए, वो क्या होता है, तुरंत पास ऑन हो जाता है। कुछ भी करता है, आपको पता है इट्स इजी टारगेट, यू वेंट इट आउट, तो वो नेगेटिव हो जाता है। उसी समय थॉट को चेंज करना है, जब ये सिचुएशन में रहते हैं उसी समय थॉट को चेंज करना है कि ठीक है वो बोल रहे हैं। लोग एक बहुत अच्छा बिग बॉस में था ना, वो बोलते थे ना, सामने वाला अगर कुछ गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो हमेशा यही सोचना चाहिए था ये बीमार है,
सामने वाला। अगर हम लोग को ये पता चल जाता है इमोशनली अनस्टेबल है, इमोशनली चलो बीमार है थोड़ा, तो हम लोग का गुस्सा अपने आप खत्म हो जाता है। जैसे कहीं और भी एक एग्जांपल था कि नर्स लोग को पता है कि पेशेंट है, राइट, तो पता है कि उन लोग इरिटेट होंगे थोड़ा बिकॉज दे आर अनवेल, तो उन लोग को गुस्सा नहीं आता है। लेकिन वही उनकी वार्डन या कोई सीनियर या कोई डॉक्टर डांट देता है, तुरंत वो नेगेटिव होगा कि क्यों डांटा मेरे को आज डांट पड़ी, आई एम डूइंग सो मच। लेकिन वैसा ही व्यवहार अगर पेशेंट करे तो उन लोग को डांटते हैं, बोलते हैं, चिल्लाते हैं ना, टाइम से नहीं लाए, मेरे को नहीं लेना दवाई, मेरे को नहीं कराना ये सब, तब गुस्सा नहीं आता है क्योंकि वो बिलीव बना है, वो सिस्टम, वो थॉट प्रोसेस क्या है कि ये तो बीमार है, उनके लिए है कि वो तो बीमार नहीं है, वो मेरे को क्यों चिल्ला रहे हैं। तो बोले अब से कोई सामने वाला बड़ा ऐसे चिल्लाए भी, कुछ बोले भी, तो बोला इमोशनली मस्ट बी गोइंग थ्रू सम टर्मोइल, तो इमोशनली अनवेल है। अगर वैसा सोचेंगे ना तो वो आएगा ही नहीं रिएक्शन वैसा। So these are some practices which we can do with ourselves. तो उस समय अगर हम लोग अपने आप पे कंट्रोल रखते, this is what practice is all about, and we can make this our habit. एक दिन में नहीं होगा, reactions आएंगे, but we can practice it. Yes. Thank you. It will take some time. क्या होता है ना, हम लोग की हैबिट हो गई है इंस्टेंट रिएक्शन, कोई कुछ बोला तुरंत मैं क्यों सुनूं। This reminds me कि हम लोग को थोड़ा सा कंफर्ट जोन के बाहर आना चाहिए। This reminds me of a story. एक मैं सुनाऊं, टाइम है? और let us do this thing gratitude so that if anyone has to leave and leave, and then I can go on. Thank you. Thank you for my wonderful session. Thank you for my Yes. Shall I done? Yes. So there was एक मंक था जो अपने मास्टर से बहुत दिन से मिला नहीं था, तो वो सोचा कि चलो मैं अपने मास्टर से आज मिलने जाऊंगा। So it will take days. तो वो जा रहे थे, he came across, काफी आज हो गए थे, तो उसको लगा कि मुझे कुछ खाना वाना चाहिए, फूड आई नीड। तो कहीं शेल्टर में दिखा था, फिर एक तो टूटा हुआ सा हट दिखा और एक काऊ दिखा, तो उसको लगा कि यहाँ पे पक्का कोई रहता है तभी काऊ है। तो उसके हट में गया, तो एक तो फार्मर और उसकी वाइफ थे, उन लोग थोड़े से ओल्ड एज। तो उनके पास गया तो बोला यू हैव समथिंग, मतलब आई एम रियली हंग्री। तो फिर मंक्स लोग जैसे होते हैं आके मांगते हैं ना, तो मतलब तो उनको तो देना पड़ता है, एंड दे हैव अ वेरी हाई रिगार्ड फॉर मंक्स, फार्मर लोग के लिए। बोला हाँ। तो उन लोग बैठाते करते हैं जैसे तैसे, और क्या देते हैं, उनके पास तो काऊ था, तो मिल्क चीज एंड ब्रेड, यही एक स्टेल ब्रेड और मिल्क चीज वो दे देते हैं। तो ऐसे बात करते रहते हैं। तो मंक उन लोग से पूछता है कि और लाइफ में कैसे फेयर करते हो, क्या करते हो। बोला एज यू कैन सी वी हैव जस्ट वन काउ, एक काउ ही है हमारे पास, तो हम लोग इससे मिल्क निकालते हैं और उसके बाद जो इसका चीज बनाते हैं, फिर इसको चीज को जब देते हैं तो उससे हम लोग ब्रेड ट्रेड कर लेते हैं, यू नो, बिकॉज दे डोंट हैव मनी, तो चीज की जगह ब्रेड ले लेते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो होल नाइट सोचता रहा, बोला ओके, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में वापस से उसको वही मिल्क चीज एंड ब्रेड मिला। तो बोला कि आई वाज थिंकिंग द होल नाइट कि मैं आपको कैसे रिटर्न करूं, आपने जो मेरे लिए किया है, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो बोला कि मेरे पास सिर्फ एक एडवाइस है कि आपका जो ये काऊ है ना, ये गाय, इसको आप मार दीजिए। वो सोचते हैं, उन लोग तो सोचने लगते हैं यही तो हम लोग इसी के भरोसे तो हैं, यही तो हम लोग का लाइफ सपोर्ट कर रहा है। और वो ये बोल के मंक वहां से चला जाता है। और इन लोग सोचते रहते हैं, लेकिन उन लोग तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मंक्स को कि वो बोले हैं तो भाई कुछ सोच के बोले होंगे। तो बोलते हैं लेकिन बोले हैं तो चलो, वो काऊ को उन लोग मार देते हैं, स्ले कर देते हैं। तो क्या होता है, उसका मीट वगैरह निकलता है। बोले सो क्या करेंगे, रखना तो है नहीं, खाते हैं नहीं हम लोग, मार्केट में लेकर जाते हैं, कहीं दूर जाते हैं मार्केट में, तो वहां उसको सेल कर देते हैं। उसको सेल करने से वट एवर दे गॉट, एंड वहां पे वो जब सेल करने जाता है, ही केम इनटू कांटेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल। तो उन लोग उसको बताते हैं कि आप यू नो इससे, इस पैसे से और क्या आप कर सकते हो। तो उसने उससे क्या किया, और भी अपना थोड़ा बिजनेस वगैरह किया, लोगों से मिला, आइडियाज मिले, तो उसने और भी बहुत कुछ खरीदा और उससे और काम अच्छा चलने लग गया। उसके बाद आफ्टर अ ईयर वो मंक वापस अपने घर आ रहा था। आते हुए देखा कि चलो अपने फ्रेंड से मिलता हूँ, देखता हूँ कैसा क्या करता है। देखे तो जब वो आया तो वो हट के जगह पे एक छोटा सा अच्छा फार्म बन गया था, एक बार्न भी बन गया था, 2 काऊ थे, कुछ चिकन्स भी थे।
और पिग्स भी दिखे, बोले वाह। तो फिर वहां से फार्मर आता है, वो पहचान लिया ये तो वही मंक है, उसको बहुत बहुत हॉस्पिटैलिटी के साथ उसको अंदर लेकर आए, कि ये बोले जाओ इनके लेके आओ। तो बहुत छोटा सा अच्छा सिंपल मील था, लेकिन खाना वाना मिला नहीं। तो उस समय क्या दे रहे थे, खाली मिल्क, चीज और ब्रेड। तो उसको खाना वाना दिए। तो फिर वो बोले कि थैंक यू सो मच, आपके एडवाइस से ही हुआ। बोला हाउ कम? तो बोलता है आपने, क्योंकि वो लोग क्या थे, सीमित जगह में रह रहे थे, उनको लगा मेरे पास एक काव है, बस यही मैं काम कर सकता हूँ, क्योंकि इसके बाहर की दुनिया उन लोग देखे ही नहीं थे, और उनको लगा था हम लोग को बस ऐसे ही जीना है, ऐसे ही रहना है। वो उसको, क्योंकि उन लोग उसके बियॉन्ड सोचे ही नहीं, कभी देखे ही नहीं, सोचे ही नहीं, पता ही नहीं, और जाना भी नहीं था। उनको लगा था यही लाइफ है, ऐसे ही जीते रहेंगे, हो गया। लेकिन वो जब बेचने के लिए गए, ही केम इनटू कांटेक्ट विद सो मेनी पीपल, जहां उनको आइडिया मिला और काम करने का उनको काम भी मिला, उससे वो काम किए और अर्न किए, और उसके बाद देखिए कितना प्रॉस्पर किए, राइट। तो वो ही मंक बोला कि वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, लुक इनटू आवर लाइफ। हम लोग ने मान के रखा है मेरी सुबह उठ के ये ऐसे ऐसे लाइफ है, मुझे इतना ही कमाना है, इतना ही जीना है, ऐसे ही जीना है, रोज के में ऐसे जीना है, कितना आगे बढ़ना है, क्या करना है। जब तक हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, गलतियां नहीं करेंगे, उससे सीखेंगे नहीं, तो कैसे होगा, है ना। तो अभी भी जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कंफर्ट जोन से कोई इतना लिखना ही नहीं चाहता, इतना कम करने से चलेगा क्या प्रैक्टिस। अरे कंफर्ट जोन से, अपने रोज की रूटीन लाइफ से थोड़ा सा हम लोग को एक तो शिफ्ट करना होगा, कुछ तो एफर्ट लेना होगा ना। तो सी हाउ, मतलब हम लोग का माइंड रेस्ट्रिक्टेड हो गया है, बिकॉज वी हैव बीन लिविंग इन दिस रेस्ट्रिक्टेड थॉट्स फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, कि मुझे तो ऐसे ही करना है, ऐसी जिंदगी होती है, जाना भी है लेकिन वो उससे वहां से बाहर नहीं निकलना है। तो कैसे होगा, हम लोग मान के ये बैठे हैं। एंड वी ऑल कैन लिव एन अमेजिंग लाइफ, वी ऑल कैन। थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा और सब कुछ होने लगेगा, है ना। यस, दैट्स व्हाट कंफर्ट जोन से मुझे याद आया था ये स्टोरी। थैंक यू पायल जी। यस, थैंक यू अर्चना जी। तो एवरी स्टोरी टीचेस अस समथिंग। अब हम लोग पे है, हम लोग उससे कुछ सीख रहे हैं कि बस एज अ स्टोरी सुन के छोड़ दे रहे हैं। Thank you, Payal ji. Beautiful story. Right, so let us take that shift, come out of our comfort zone, and make our life better. We all deserve a better life than what we are leading right now. All right. Any other question? किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग टुडेज प्रैक्टिस? थोड़ा टाइम दो, सोचो। मिस्टेक को तो पहले सोचना पड़ेगा। जो बहुत ही अच्छे हैं, सुमन बोल के मुझे तो कोई मिस्टेक ही जैसे उसको तो याद ही नहीं आया था कि ऐसा कुछ मिस्टेक हुआ है। Right, it can be a very small mistake that I also lose temper. I lost temper, on my staff only. Then I realized, क्या सीखने को मिला, नहीं मुझे क्यों उन पे टेम्पर लूज किया, अननेसेसरली काम किए तो भी टेम्पर लूज, क्योंकि इजी टारगेट दिखता है ना। So we can learn from those mistakes. Yes. So next time, उससे के आजकल मैं उसके सामने ही नहीं जाती। मुझे लगता है जिस काम से मैं आई एम लूजिंग द टेम्पर, व्हाट आई डू इज आई अवॉइड टोटली। अब वो जब वो काम किचन में वैसा कर रही होती है, आई हैव मेड इट अ पॉइंट, आई विल नॉट बी इन द किचन व्हेन शी इज देयर इन द किचन। मैं उस समय घूमने से बैठ जाती हूँ। वेरी ट्रू पायल। इवन ही सेज, मतलब मैं वो बोलता है आप बाहर जाइए बाबू। नॉट ऐसा मुझे भी लगता है कि मैं बाहर रहती तो ज्यादा शांति है, अंदर जाते ही किचन में कुछ ना कुछ बोलना। विदाउट इट मैं व्हाई यू गो इनसाइड मम्मा, ही इज डूइंग एवरीथिंग, यू अननेसेसरली गो एंड से समथिंग। एब्सोल्युटली, तो वो ह्यूमन नेचर हो जाता है। हाँ, तब मुझे समझ में रियली आई एम रॉन्ग इन दिस, हाँ, तो आई शुड चेंज माय सेल्फ। तो अब नहीं होता है। अब वो छोटे छोटे जो टिप्स होते थे अब वो नहीं होता है। When she is there, I am out. When I am in, she is out. हम लोग खुद ही मेंटल पीस खो देते हैं इसमें। Because we have a habit since years. इसका भी ये भी एक है कि भाई काफी कंट्रोल आ गया है, काफी कंट्रोल आ गया है, बट अभी भी बहुत कंट्रोल है। That is true. So this is all, through practice only control होगा। Every day we have to practice. ये एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, कितने years का है। So we have to keep practicing. So after the book also, I would say keep practicing. We have to master it. और अगर किसी को थोड़ा सा भी अपने में ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है, that means you have started. अगर लग रहा है खुद चेंज कि मैं थोड़ी सी अब कम रिएक्ट कर रही हूँ, मैं थोड़ी सी काम हो गई हूँ, that means you are on a good change.
अगर उतना स्टार्ट हो गया है तो लेट्स make our own life very beautiful for ourselves and for our family and for others. All right, so Sunday, as I say, always Sunday, fun day. Have a nice Sunday morning. I hope you all had a nice Sunday morning. We to Suman went out. Now we went to Victoria today. हम विक्टोरिया के पास से वहां पे and from you and before you came here. Yes. Right. So have a nice day, all. Enjoy yourselves. Thank Stay you. off the line. Thanks to खुशी Palvi. हमारे अंदर है. Remember, we have to find happiness for ourselves. Should not be dependent on others to make us happy. Right? Thank Thank you. you, Thank Palvi. you, Nishima. I'm seeing you for the first Palvi. time. Thank you. I'm seeing her for the first time. Thank you. Thank you. Thank you, Palvi. Thank you. Thank you. Thank you, See you all Payal. Thank tomorrow. you. See you all tomorrow. Thank you, Payal ji. Bye. Bye bye. Thank you. Bye, Pooja. Bye.